Assalamu alaikum, sir. My name is Muhammad Aftab and I study in 10th class at Thal Public School and at College 22 Ami Khushab. Sir, I have a question. The question is, what is difference between evaporation and boiling? Please explain this. Thank you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you, Aftab. Your question is quite simple and is related to the basic science concept. I was expecting that you might be familiar with it, but there's no issue in asking question. Questions always strengthen your understanding. Well, your question is what is difference between evaporation and boiling? Both evaporation and boiling result into one thing, that is turning liquid into gas or turning liquid into water vapor or steam, whatever you call it, turning liquid into gas or into water vapor, into steam. That is the result of both these processes, boiling and evaporation. So the result is same. Now, how does liquid turn into gas in evaporation, and how does it turn into gas in boiling? Let us study them and compare them. You want to know the difference between them. First of all, boiling happens throughout the liquid from everywhere, from the bottom, middle, and the surface of the liquid. So, water turns into gas throughout the entire liquid inside. But in case of evaporation, liquid turns into vapor or into gas only at the surface of the liquid. So, this is difference number one. The difference number two is evaporation takes place at any temperature below boiling point. I mean, below 100 degrees centigrade, at any temperature, even at minus temperature, evaporation keeps taking place. For example, on very cold days, when you dry your wet clothes, because of evaporation, your clothes get dry. Although there's a lot of cold outside, but evaporation हो रही है. अगर आप पानी रख दें कमरे के अंदर, ठंडे कमरे के अंदर, तो फिर भी इवेपोरेशन होती रहेगी. तो एट एनी टेम्परेचर इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट. 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती रहेगी. बट in case of boiling, liquid turns into vapor only at a fixed temperature, which is called boiling point, which is 100 degrees centigrade at sea level. At sea level, the water turns into vapor only at a fixed temperature, which is 100 degrees centigrade and which is called boiling point. So this is difference number two. Now the difference number three is, in case of evaporation, water turns into gas very slowly, very slowly. But in case of boiling, liquid turns into gas very rapidly, very rapidly. This is difference number three. Difference number four is that in case of boiling, energy is used to turn the liquid into gas. You heat up the liquid,
You supply heat from outside, you add heat to the liquid, and the bonds between the particles of the liquid, the molecules of the liquid, are broken because of the energy which you are supplying from outside, and the liquid is turning into gas because of that energy which you are providing. But in case of evaporation, you do not provide any energy from outside. So this is difference number 4. Now, difference number 5 is, in case of boiling, you will see the formation of bubbles inside the liquid. Inside the liquid, even at the bottom or in the middle, you will see the formation of bubbles at boiling point at 100 degrees centigrade. But you will not notice any such thing in case of evaporation. Evaporation में जब molecules escape करेंगे surface से, आपको कोई bubbles नजर नहीं आएंगे, मगर boiling में आपको बुलबुले नजर आएंगे दरमियान में inside उठते हुए ऊपर. ठीक? तो ये this is difference number 5. Then is 6. What is the effect on the liquid of evaporation and boiling? When evaporation takes place, the liquid which is left behind becomes cold. So evaporation has a cooling effect. Whereas in case of boiling, we have already studied in my last 2 videos, I explained it, that at boiling point, the temperature remains constant. It does not change. So in case of evaporation, the temperature decreases, but in case of boiling, the temperature remains constant. So this is the number 6. Now, these are some of the key differences between evaporation and boiling, but there are a couple of scientific phenomena which you must understand and I must explain. When I say that evaporation is a cooling process, what do I mean? How does the liquid which is evaporated becomes cool? Now, you see, as I have already told you, that the molecules of the liquid which evaporate, they evaporate from the surface, and they are the fastest moving molecules. They have the highest kinetic energy. Now you must remember that for a molecule to escape from the surface in case of evaporation, there have to be 2 conditions. Number 1, the molecules which are escaping, they must be present at or near the surface of the liquid. Number 1. Number 2, these molecules must have enough kinetic energy to overcome the forces of attraction between the molecules. अब एक मॉलिक्यूल है, उसने एवेपोरेट करना है, उस लिक्विड से निकल के गैस बनना है, वो सरफेस के ऊपर उसका मौजूद होना जरूरी है, पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये है, उसके अंदर इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो कि जो दूसरे मॉलिक्यूल उसके साथ नीचे जुड़े हुए हैं, जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ब्रेक कर सके. वो मॉलिक्यूल, उसमें काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो बल्कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, एक मॉलिक्यूल ने बेशुमार मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उनको वो ब्रेक कर सके, इतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए. ये 2 कंडीशंस चाहिए इवेपोरेशन में मॉलिक्यूल को इवेपोरेट करने के लिए.
अच्छा, अब उसमें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो एवेपोरेट करेंगे, क्योंकि वही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं उनको ब्रेक कर सकेंगे ना। तो फिर बाकी जो लिक्विड बच जाएगा एवेपोरेट जब वो करेंगे तो वो ठंडा होगा। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट है। मैंने कहा कि उसका टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। कैसे नीचे आ जाएगा, जरा इसको समझें। देखें, टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। आम टेम्परेचर की डेफिनेशन जो स्टूडेंट्स और टीचर्स करते हैं वो ये है कि टेम्परेचर इज tells you how cold or hot something is. Temperature is the measure of coldness or hotness of something. कि कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है वो टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ये भी डेफिनेशन। बट साइंटिफिकली टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है, टेम्परेचर इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। अब टेम्परेचर जो है वो क्या है, उस लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल की एक काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी का आप एवरेज ले लें, हर मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी वो उसका टेम्परेचर होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, जब उसमें हीट एनर्जी जाती है मॉलिक्यूल के अंदर तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसकी मूवमेंट बढ़ती है। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन दैट सबस्टेंस, इन दैट लिक्विड। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। अब जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे डू नॉट मूव एट द सेम स्पीड। उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, उन सब की मूवमेंट सेम नहीं है। सम आर स्लो इन स्पीड, सम हैव मॉडरेट स्पीड एंड सम हैव वेरी हाई स्पीड। ठीक है, इसी तरह ही है जैसे सम पीपल आर वॉकिंग, सम पीपल आर जॉगिंग एंड सम आर रनिंग। ठीक, अच्छा, वो जो हाईएस्ट स्पीड है जिनकी और वो सरफेस पे हैं वो एस्केप कर जाएंगे। अच्छा, अब पीछे जो है वो, क्योंकि उनमें मैक्सिमम एनर्जी है, जब मैक्सिमम एनर्जी निकल जाएगी तो पीछे जाहिर है फिर वो जो जो लिक्विड बचेगा उसने ठंडा ही होना है ना, जब उसमें से मैक्सिमम हीट निकल गई। अब बिल्कुल मैं आपको एक एनालॉजी से समझाता हूं। फर्ज करें देयर इज अ ग्रुप ऑफ 12 पीपल, उनमें 10 बंदे जो हैं उनके पास 100 रुपए है, हर बंदे के पास 100 रुपीज, और जो 2 बंदे हैं उनमें से हर एक के पास 1,000 रुपया है। तो जो टोटल 12 बंदों के पास कितने पैसे हो गए, 3000। क्योंकि 10 बंदों के पास 1000 हो गया और 1,000 2 बंदों के पास है, 2000 वो हो गया, तो टोटल हो गया 3000। ये 12 बंदों के पास 3000 है, तो एवरेज हर बंदे के पास कितने पैसे हो गए, 3000 डिवाइडेड बाई 12। 3000 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 250। तो एवरेज अमाउंट ऑफ मनी विद एवरीबॉडी इन दैट ग्रुप इज ₹250, ₹250। अब उनमें जो उस ग्रुप में जो द रिचेस्ट 2 जिनके पास 1000 है वो ग्रुप छोड़ जाते हैं। जिस तरह वो मॉलिक्यूल जो सबसे रिच थे एनर्जी में वो लिक्विड को छोड़ गए थे, अब वो छोड़ जाते हैं, ग्रुप को छोड़ जाते हैं। अब मुझे बताएं जो पीछे 10 बचते हैं उनकी एवरेज अमाउंट ऑफ मनी हर एक के पास कितनी है, 100 थी, तो 10 बंदों के पास 1000 को 10 पे तकसीम करें तो 100 आ गया, तो 100 उनके पास एवरेज अमाउंट रह गई है। पहले कितनी थी, 250। ठीक है, तो इसी तरह जब वो हाईएस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल गए तो पीछे तो वो मॉलिक्यूल बच गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है। तो आपको पता है, मैंने बताया है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन दैट लिक्विड। तो अब एवरेज एनर्जी जो है वो तो थोड़ी रह गई है, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी वाले तो निकल गए। अब पहले 250 थी, अब 100 रह गई है। ठीक है, तो वो फिर पानी क्या हो जाएगा, पानी या जो भी लिक्विड है, इट विल बिकम कोल्ड, तो ये कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है,
इसमें मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल्स दे देता हूं। स्वेटिंग है, आपको पसीना आ रहा है, पसीना आया हुआ है। अब जब आपका पसीना इवेपोरेट करता है, ठीक है, पसीना उड़ता है, तो आपको कभी महसूस किया आपने, आपको ठंड लगती होगी, जिसम थोड़ा सा ठंडा महसूस करता है? यस, करता है ना? क्यों? इसलिए कि वो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवेपोरेट करेंगे आपके स्वेट से, आपके पसीने से, जिनमें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी है, हाईएस्ट हीट है। तो वो हाईएस्ट हीट जब निकल जाएगी आपके जिस्म से, तो आपका जिस्म ठंडा हो जाएगा, इसलिए आप ठंड महसूस करते हैं। इसी तरह अगर आप वो पानी वाला घड़ा नहीं होता, पानी वाला घड़ा जिसको कहते हैं कि क्ले पॉट वाटर, क्ले पॉट वाटर, ठीक है। अब वो उसमें पानी ठंडा क्यों हो जाता है? वो जो क्ले का पॉट होता है, जो घड़ा होता है, उसमें जब आप पानी डालते हैं, अब वो उसकी क्ले की जो साइड्स हैं वो होती हैं पोरस, उनमें पोर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको वैसे नजर नहीं आते। अब उनमें से वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर निकलते हैं, एस्केप करते हैं, उन पोर्स में से बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो वो एनर्जी लेके जाते हैं, ठीक है। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है, वो हीट लेके निकलते हैं, तो पीछे पानी जो घड़े में बचता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह कभी आपने महसूस किया है कि जब डॉक्टर आपके जिस्म के ऊपर कहीं स्प्रिट लगाता है या अल्कोहल लगाता है, स्प्रिट, तो आपको बड़ी ठंडक महसूस होती है, इसलिए कि वो जो स्पिरिट है वो इवेपोरेट करता है बड़ी स्पीड से, बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाता है, बड़ी क्विकली इवेपोरेट कर जाता है। जब वो इवेपोरेट करता है तो फिर इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, वो हीट लेके निकल जाता है और आपका जिस्म, वहां पे आपको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। तो ये जो इवेपोरेशन है ये कूलिंग प्रोसेस। अच्छा, अब जो बॉइलिंग है वो मैंने बताया कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर तो कम हो गया इवेपोरेशन में, वहां पे कांस्टेंट रहता है। अब एक मैंने कहा था बबल फॉर्मेशन। अच्छा, ये बबल फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या होती है? ये बबल जो बनता है जब बॉइलिंग पॉइंट पे आता है वाटर, जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो वो जो बबल्स नीचे से उठ रहे होते हैं, आपको नजर आ रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। वो जो बबल इन अ बॉइलिंग वाटर इज नॉट एयर, ये को बाहर से हवा नहीं उसके अंदर दाखिल होगी, नो। एक्चुअली क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर the kinetic energy of all the molecules everywhere in the liquid, throughout the entire liquid, increases, and they overcome the forces of attraction everywhere, in the middle, at the bottom, at the top. हर जगह पे वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको, उन पे गलबा पा लेती है। वो इतनी एनर्जी उनमें हो जाती है हीट से, 100 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है, कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उनको ब्रेक कर देते हैं हर जगह पे, इवन इन द सेंटर या बॉटम। जब वो वहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती हैं इनसाइड द वाटर, तो वो मॉलिक्यूल्स फासले फासले पे हो जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते तो क्या बनते हैं? गैस। तो वो इनसाइड द वाटर गैस बन जाती है, वो गैस की पॉकेट्स, वेपर की पॉकेट्स बन जाती हैं। वो सारे वेपर्स होते हैं, जो आपको बबल नजर आता है वो वाटर वेपर होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो सेपरेट हो गए थे। वो बबल, वो वाटर वेपर है, एक्चुअली गैस है वो, ठीक है। अच्छा, वो गैस तो बन गई वहां पे। अब वो गैस के जो मॉलिक्यूल, वो जो बबल हैं, वो क्या, वो उन्होंने राइज करना है, ऊपर आना है और एस्केप करना है। अच्छा, वो राइज उस वक्त करेंगे जब उनका अपना प्रेशर, जो बबल के अंदर वेपर प्रेशर, जो वेपर बने हैं, गैस बनी है, उसका एक प्रेशर है ना, जब उनका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी उस वाटर
के ऊपर, ये ऊपर एटमॉस्फेयर है, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, मैंने कल एक लेक्चर में बताया था ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर होता है या 1,01,325 पास्कल होता है प्रेशर। जब उस बबल के अंदर जो वाटर वेपर है उनका वेपर प्रेशर बिल्कुल उतना हो जाएगा जितना उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी 1 एटमॉस्फेयर, तो वो बबल जो है वो राइज करेगा, वो उसके इक्वल हो गया। अब राइज क्यों करेगा बबल, कैसे राइज करेगा, वो तो ऊपर पानी का वजन है। नहीं, बबल की डेंसिटी कम है। आपको पता है कि एयर की डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड से कम होती है, और हमने परसों एक लेक्चर में पढ़ा था कि जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी वो फ्लोट करेगा। फ्लोटिंग और सिंकिंग में पढ़ा था ना। अब चूंकि बबल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो इसने फ्लोट करना है, ये ऊपर आएगा। जब ये ऊपर सरफेस पे आएगा, सरफेस पे पहुंच के ये बर्स्ट करेगा और इसमें से सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स, वो ऑलरेडी वेपर, वो गैस बनी हुई, वो बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से बबल फॉर्मेशन होती है, यानी उसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो गई हैं और ये फ्री हो गए हैं मॉलिक्यूल्स, और ये गैस बन गए और वो बबल की एक पॉकेट बन गई। वो पॉकेट जो है, अगर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है, अगर उस पॉकेट का वेपर प्रेशर उतना ही हो जाए जितना ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो बबल, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है वाटर की डेंसिटी से, लिक्विड की डेंसिटी से, वो ऊपर आ जाएगा सरफेस पे और ऊपर आके बर्स्ट कर जाएगा और उसमें से गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर जाएंगे हवा में। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस, इवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, और इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ये भी समझ आ गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि ये बबल फॉर्मेशन कैसे होती है और ये क्यों होती है। ठीक है, तो मुझे फिर इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।